Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent.
Now I will invite Hafiza Tuba Rauf for recitation of verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Honorable Chancellor, Sir, I request you to declare the convocation open. I declare the convocation open. I request the worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, to present the welcome address and the annual report. Bismillahirrahmanirrahim. Worthy Chief Guest, President of Pakistan, Mr. Arif Alvi Sahab, Honorable Governor of Punjab and Chancellor of LCWU, Chaudhry Mohammad Sarwar Sahab, Worthy Vice Chancellor, Secretary Higher Education, respected member of syndicates, academic council, faculty, alumni, graduates, and all the distinguished guests. Assalamu alaikum. On behalf of entire faculty and staff of Lahore College for Women University, I proudly welcome you all on the 16th convocation of Lahore College for Women University. It's an immense moment of pleasure for us to have the dignified presence of Honorable Chief Guest, President of Pakistan, Mr. Alvi, on this special day of academic excellence. Not a passable number of words can express how much obliged we are that Mr. President accepted our invitation and graced this occasion. Thank you, sir. I'm also grateful to our worthy Chancellor, Governor of Punjab, Chaudhry Mohammad Sarwar Sahab, for accepting our invitation to preside over this convocation. Thank you, sir. You are always very kind. Lahore College for Women University is one of the largest and historical institutions of higher education for women, not just in Pakistan, but in this whole region. It started its journey as an intermediate college in 1922, and by making tremendous progress, got status of university in 2002. The completion of 100 years of excellence of this prestigious institution in the year 2022 certainly endorses its factual and constructive role in the field of education, along with the massive formation of highly qualified and skilled women throughout the century. It gives me immense pleasure to share that on this glorifying occasion of 16th convocation, an incredible number of 5,506 graduates of BS, MS, MPhil, and PhD are going to receive their degrees. The university has produced a total of 204 PhD scholars up to now. Out of this, 96 PhD students will receive their degrees on this convocation. Our total current enrollment is more than 16,000. But our focus is not just on quantity, but on quality of education we are providing.
That is the reason our university has progressively elevated international ranking and scored prominent position in the Times Higher Education Impact Ranking of year 2022 as well as year 2020 as well as in 2021. LCWU is ranked 6th among 36 universities of Pakistan which appeared in 2021 impact ranking. Overall, we are ranked in 400 plus category out of 1,115 ranked institutions of the world. The Sustainable Development Goals in which LCWU performed remarkably are quality education, gender equality, reducing inequalities, and partnership for goals. Honorable guests, we have recently established several national and international collaborations, which include being part of an international network of statistical labs established by University of Colorado in cooperation with USAID, a joint project with George Washington University for Gender Studies, a STEM education project funded by British Council in collaboration with several UK-based universities. We have signed several MOUs with national as well as foreign universities of UK, USA, Japan, Turkey, Iran, Philippines, and Iran. Furthermore, the university is establishing its national and international collaborations with industry through ORIC as industry-academia linkage to make our research relevant to the local industry as well as to provide internships to our students. We signed an MOU with Punjab Energy Efficiency and Conservation Agency for installation of solar system at our campus. We also signed an MOU with Youth and Sport Department, Government of Punjab for online library resources to boost our research as well as create awareness about Islam and Sufism. I feel delighted to share that LCWU is a proud member of CPEC Consortium of Universities, which is indeed a great initiative of Higher Education Commission of Pakistan and China Association of Higher Education. Furthermore, we are also founding member of All Pakistan Women University Consortium. Honorable guests, we are not only focusing on strengthening our existing programs, but also various new disciplines and academic programs, including Doctor of Physiotherapy, Special Education, Disaster Management, Tourism and Hospitality, and Software Engineering have been started. We are also working on initiating a joint degree program with Virtual University to bring our degree to the doorsteps of girls living in remote areas. Strengthening of our existing program is evident by the fact that HEC issued NOC for several of our previously halted programs. Furthermore, various accreditation councils have shown full satisfaction on our programs, and hence, Pharmacy Council allowed us a 100% increase in our enrollment. Similarly, Pakistan Engineering Council accredited our passing out sessions 2021 and 2022. By obtaining this accreditation, LCWU has become the first ever female institution in Pakistan which successfully obtained OBE Level 2 accreditation for consecutive 2 years. As Pakistan Engineering Council is full signatory body of Washington Accord, the degree of our graduates are now equally recognizable in more than 25 countries like Australia, America, Japan, and Canada. Our Directorate of Research Development and Internationalization is actively involved in teachers training as well as engaging students in activities like Active Citizen Program. Our students have also been engaged in training program provided by Idea Gist, a program to support Prime Minister initiative under Kamyab Jawan Startup Pakistan program. To foster freelancing, a well-equipped and fully furnished e-Rozgar lab is also functional at varsity for students. In addition, to meet the demand of digital era, the Smart University project has been successfully launched at LCWU in collaboration with Higher Education Commission of Pakistan. In the wake of pandemic COVID-19, LCWU launched several initiatives, including an online course directory at its official website. We first time conducted all of our admissions online, and the highest number of admissions in the history of LCWU were made in very efficient, transparent, and economical manner.
Launch of Web TV by Mass Communication Department is another great achievement in this regard. Moreover, we, in a joint venture with International Young Psychologist Society, launched an online counseling center which addresses psychosocial aspects of our students in an effective and confidential manner. We also provide financial assistance to our needy students, further enabling them for higher education. The said financial aid is based on scholarship provided by the government and university's own funding. We have dispersed a generous amount of more than 200 million to most deserving students of LCWU. We at LCWU are very much conscious of the fact that function of an educational institution is not just providing knowledge of the subject students are studying, but also to provide them an environment in which they can groom themselves by polishing their soft skills. That's why we encourage them to participate in sports and other co-curricular activities. And I'm so proud to share that our students' performance is always outstanding. For example, in the recently held Prime Minister Kamyab Jawan Sports Drive in Islamabad this month, our students got medals in athletics, judo, football, handball, volleyball, tennis, and hockey. Overall, they secured second highest position among all the universities of Pakistan and made 6 new records. Honorable guests, I'm delighted to share that to cope up with the emerging needs of community, we are looking forward to start our new campus at Kalasha Kaku soon. This campus aims to make higher education accessible to 20,000 more young women. The project PC1 had been approved by DDWP and included in PSDP for year 21-22 at a total cost of 1.77 billion, with an implementation period of 36 months. It will be, inshallah, model campus where a nursing college, law college, Institute of Environment and Climate Change will be established. Now to the much awaited audience, my lovely graduates. Congratulations might sound a micro word. Well, I believe the more appropriate word would be bravo. You did it, and I am so proud of you. Not forgetting the unwavering dedication and dynamic contribution of your teachers here, who put in so much hard work to bring you up, a moment of celebration for them as well. Dear graduates, the gigantic power of education that you must be feeling within yourself today would lead you to the brightest future. You are substantially empowered and markedly prepared to excel in life with confidence, conviction, and reliance. Moreover, to play a constructive role in the progress of your country. LCWU feels so pleased and delighted that a new generation of academic excellence and our national asset is just ready right here, right this day. On behalf of LCWU faculty and administration, I profoundly extend my gratitude to the Honorable Chief Guest, Honorable Chancellor, Minister of Higher Education Department, Higher Education Commission, Punjab Higher Education Commission and Government of Punjab for providing all the necessary support to LCWU to strengthen the university to ensure provision of quality higher education and research. Much consideration and adoration for our dedicated teaching faculty and hard-working non-teaching staff, whose support has enabled LCWU to achieve its goals. At the end, I would like to thank all the members of Convocation Committee and supporting staff for their committed and serious service, enabling this event a memorable success. Once again, heartfelt congratulations to the graduating students, their parents, teachers, and thank you all, my distinguished guests, for your precious time. Pakistan Zindabad, LCWU Paindabad. The Dean, Faculty of Science and Technology is requested to present the candidates of PhD degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of PhD in biotechnology, botany, chemistry, environmental sciences, physics, and zoology are requested to please rise.
Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of PhD in the relevant disciplines, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of the LSTWU Lahore, I admit you to the degrees of PhD in the relevant discipline, and in token thereof, I present you the degree and authorize you to bear the oath ordinance as insignia of the degree. The Dean, Faculty of Engineering and Technology is requested to present the candidates of PhD degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of PhD in Computer Science are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of PhD in relevant discipline, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of LSTWU Lahore, I admit you to the degrees of PhD in the relevant discipline, and in token thereof, I present you this degree and authorize you to bear the oath ordinance as insignia of the degree. The Dean, Faculty of Arts and Social Sciences is requested to present the candidates of PhD degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of PhD in Fine Arts, Political Science and Psychology are requested to rise, please. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degree of PhD in Fine Arts, Political Science, Psychology, to which degree I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of LSTWU Lahore, I admit you to the degree of PhD in relevant disciplines, and in token thereof, I present you the degree and authorize you to bear the oath ordinance as insignia of the degree. The Controller of Examinations is requested to present the candidates of PhD degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of PhD in Education, Islamic Studies, Persian, Punjabi and Urdu are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of PhD in the relevant disciplines, to which degree I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of LSTWU Lahore, I admit you to the degrees of PhD in relevant disciplines, and in token thereof, I present you the degree and authorize you to bear the oath ordinance as the insignia of the degree. The Dean, Faculty of Science and Technology is requested to present the candidates of MS degree in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of MS in Biotechnology, Botany, Chemistry, Environmental Sciences, Mathematics, Physics and Zoology are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of MS in the relevant disciplines, to which degree I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of LSTWU Lahore, I admit you to the degrees of MS in the relevant disciplines, and in token thereof, I present you these degrees and authorize you to bear the oath ordinance as the insignia of the degree.
The Dean, Faculty of Engineering and Technology is requested to present the candidates of MS degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of MS in City and Regional Planning, Computer Science and Electrical Engineering are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of MS in relevant disciplines, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of LC Lahore, I admit to degrees of MS in relevant disciplines and in total thereof, I present to you these degrees and authorize you to the law, argument as The Dean, Faculty of Arts and Social Sciences is requested to present the candidates of MS degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of MS in Economics, Fine Arts, Gender and Development Studies, Health Psychology, History, Mass Communication, Political Science and Statistics are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degree of MS in relevant disciplines, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of LCWU Lahore, I admit you to the degree of MS in the relevant disciplines and in total thereof, I present you the degrees and authorize you to their law, ardent as insignia of the degree. The Controller of Examinations is requested to present the candidates of MS, MPhil degrees in various disciplines to the Honorable Chancellor. Candidates of MS in Management Science and MPhil in Pharmacology and Pharmacy Practice are requested to please rise. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of MS MPhil in the relevant disciplines, to which degree I pray they be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of LCWU Lahore, I admit you degrees of MS MPhil in the relevant disciplines and in total thereof, I present to you the degrees and authorize you to the law, argument as insignia of the degree. I request the Honorable Chancellor, respected Governor of the Punjab, Chaudhry Muhammad Sarwar, to address the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा वाइस चांसलर, मोहतरम डीन्स, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनाब जावेद बुखारी साहब, हमारे वाइस चांसलर तलत पाशा साहब, सीनियर एंकर सलेमान गनी साहब, मुअज़्ज़ज़ असतिज़ा अकराम और अज़ीज़ तालबात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि आज एक अहम कन्वोकेशन में, जिसमें हमारी इतनी बेटियाँ जो हैं माशाल्लाह डिग्री ले रही हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अलवी साहब। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा को, आई मस्ट से शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाइस चांसलर आई हैव इन पंजाब, और मैं इनको और इनकी पूरी टीम को, और ख़ासकर जब जो बहुत चैलेंजिंग टाइम था कोविड-19 के दौरान, और इनके स्टाफ को जिस मेहनत के साथ इन्होंने
माशाल्लाह इन मुश्किल हालात में एजुकेशन को प्रमोट किया, मैनेज किया। इस पे आप और आपका पूरा स्टाफ जो है माशाल्लाह हमारा जो है वो यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़। और एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो 50 साल मेरी सियासी, बिज़नेस और चैरिटेबल काम में गुज़री है, एक मैंने चीज़ सीखी है कि मेरिट पे अगर आप काम करेंगे, मेरिट आपकी प्रायोरिटी होगी, तो फिर आपको हर फील्ड में कामयाबी होगी। तो जब मैं इस दफ़ा चांसलर बना था तो मुझे मालूम था कि हमेशा जब भी वाइस चांसलर की सिलेक्शन होती है उनमें 3 या 5 नाम जो है वो सर्च कमेटी भिजवा देती है, हायर एजुकेशन के ज़रिए से चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, और उन 3 या 5 नामों में से जो भी उनको पसंद होता है उसको वो वाइस चांसलर लगाते। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं फ़ैसला नहीं करूँगा, चीफ मिनिस्टर फ़ैसला नहीं करेगा, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन फ़ैसला नहीं करेगा, एजुकेशन मिनिस्टर फ़ैसला नहीं करेगा, जो सर्च कमेटी में नंबर 1 पे आएगा वही वाइस चांसलर जो है होगा। और माशाल्लाह मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हमारी मुश्किल हालात में भी हमारे वाइस चांसलर ने जो मेरिट पे लगाए गए थे उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और अब हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं माशाल्लाह, जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, उनमें हमारी यूनिवर्सिटियां माशाल्लाह और टॉप 1000 में भी शामिल जो हैं वो हो रही है। मेरे लिए बतौर चांसलर यूनिवर्सिटी आज बहुत खुशी का दिन है। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी एक बावकार अदारा है जिसकी तारीख़ शानदार इल्मी रवायात से मुज़य्यन है। इस अज़ीम शान तालीमी अदारे में आना मेरे लिए हमेशा खुशी और एज़ाज़ का बायस रहा है। मैं ये समझता हूँ कि यह एज़ाज़ सिर्फ़ मेरे लिए ही नहीं बल्कि आप असातिज़ा और तालबात के लिए भी ये बात बायस फ़ख्र है कि आप इस अदारे से मुंसलिक हैं। अज़ीज़ तालबात, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक़, वालिदैन की दुआओं, असातिज़ा की सरपरस्ती और अपने अज़्म व मेहनत से आज आपने कामयाबी का पहला ज़ीना तय कर लिया है। पहला ज़ीना इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अभी बहुत आगे जाना है। आपके पुरअज़्म चेहरे और रोशन आँखें इस बात की गम्माज़ हैं कि आपकी कामयाबियों का ये सफ़र इंशाअल्लाह इसी तरह से जारी व सारी रहेगा। अज़ीज़ तालबात, मैं आपके वालिदैन को भी ढेरों मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपने खून पसीने से आपके हसूल इल्म की काविशों की आबियारी की और आपको इस काबिल बनाया कि आपने तालीमी मैदान में नुमायाँ कामयाबियाँ अपने नाम। एक बात, जब भी मैं किसी कन्वोकेशन में जाता हूँ या मुझे बच्चों को एड्रेस करने का, यूथ को मौका मिलता है, तो एक मैं बात उनको ज़रूर हमेशा ये कहता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आपकी कामयाबी में आपके वालिदैन ने और आपके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। और मैं अक्सर ये बच्चों से कहता हूँ कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी, जितनी उनकी इज़्ज़त करोगे ज़िंदगी में उतनी ही कामयाबी पाओगे। मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको ये बात कहता हूँ कि मुझे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा ख्याल था कि वालिदैन की ज़रूरत है, जब आपके लिए वो फ़ीस अदा करते हैं, कपड़े आपके लिए ख़रीदते हैं, और उसके बाद जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ख़ुद कमाई करने लग जाएंगे, तो फिर आप वालिदैन पे इतना इन्हिसार नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मुश्किलात के पहाड़ आए, लेकिन जब मैं अपनी वालदा के पास गया और उसने मुझे कह दिया कि मेरे बेटे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, तो मुझे कभी शिकस्त नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि कामयाबी जो है इंशाअल्लाह
आपके रास्ते में आएगी। इस मौका पर लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के मेहनती, दयानतदार और पुरज़म असतिज़ा का किरदार भी मुसलमा है। मुझे आप सब पर फ़ख्र है और मैं असतिज़ा कराम को शाबाश, मुबारकबाद और दुआ देता हूँ कि जिस बेलौस जज्बा, पेशा वराना महारत के साथ आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, आज का दिन उन्हीं काफ़ियों का समर है। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। अज़ीज़ तालबात, मैं आपको नसीहत करना चाहूँगा कि आप अपना जो है ना मेहनत, एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथ जो लड़के थे एक्स्ट्रा, जिनको कहते हैं ना ब्रिलियंट, लेकिन मेहनत के आदी नहीं थे। अल्लाह ने उनको इतना दिमाग दिया था कि एक दफ़ा पढ़ लें तो उनको हर चीज़ याद हो जाती। तो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो गए हैं ना, जिन्होंने मेहनत नहीं की वो कामयाब। हार्ड वर्क में जो मीडियाकर हैं मेरे जैसे, वो भी कामयाब हो गए, लेकिन बहुत शार्प ब्रेन, इंटेलिजेंट बंदे प्रैक्टिकल में नहीं कामयाब हुए क्योंकि मेहनत के आदी नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि मेहनत जो है अगर आप करते हैं तो अल्लाह आपको उसका समर देता है। तो इसलिए आप अपनी मेहनत जो है करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह कामयाबियाँ जो हैं वो आएंगी। आज से आप एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। आपके वालिदैन और असतिज़ा की आपसे बहुत सी तवक्कात वाबस्ता हैं। आप अपने वालिदैन, असतिज़ा और इस अदारे की अखलाकी व इल्मी रवायात की अमीन हैं। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी ने अपनी इब्तदा से आज तक बहुत सारे कौमी रहनुमा, स्कॉलर, रिसर्चर, साइंसदान, हुनरमंद और माहरीन तालीम पैदा करके मुल्क की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है। अज़ीज़ तालबात, दीन इस्लाम में हसूल इल्म पर बड़ा ज़ोर दिया गया है, ख़ास तौर पर औरत की तालीम पर, क्योंकि औरत का बुनियादी मनसब माँ है और माँ की गोद बच्चे की पहली दस्तगाह होती है। तभी आज पूरी दुनिया इस हकीकत की मोतरफ नज़र आती है कि एक मर्द को पढ़ाना एक फ़र्द को तालीम देना है, जबकि एक औरत को तालीम देना एक ख़ानदान को तालीम याफ्ता बनाना है, और ख़ानदान मिलकर मुआशरा और कौम बनते हैं। इस हवाले से मुझे यकीन है कि अब आप इस मुआशरे की तामीर व तरक्की में अपना मौसर किरदार जो है वो अदा करेंगे। मैं इस बात पर कामिल यकीन रखता हूँ कि तरक्की के सफ़र में ख़वातीन की अरादतन शिकस्त के बगैर ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तालीम याफ्ता ख़वातीन की हैसियत से अब आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अमली मैदान में आगे आएँ। हुकूमत ख़वातीन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म है, और हमारी पूरी कोशिश है कि कौम के इस बाइज़्ज़त तबके को घरेलू तशद्दुद और सनफ़ी अदम मसाजात जैसे मसाइल से निकाल कर उनका एतमाद बहाल करें, ताकि वो कौम की इज्तिमाई तरक्की के सफ़र में अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरुए कार ला सकें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनका विज़न है कि जब तक हमारी ख़वातीन तरक्की नहीं करेंगी उस वक़्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक हमारी माइनॉरिटीज़ कम्यूनिटी हमारे साथ बराबरी की बुनियाद पर नहीं चलेंगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो हम अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान इस विज़न को, कायद आज़म की जो विज़न थी जब पाकिस्तान बना था, उन्होंने फरमाया था कि अब पाकिस्तान बन गया है, इस मुल्क में रहने वाले सब लोग पाकिस्तानी हैं, देयर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कल्चर, क्रीड, रिलीजन। और इंशाअल्लाह उस विज़न को लेके हम आगे जो हैं बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी इस मक़सद के हसूल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के पुरवकार अज़मत और सलाहियत को मनवाने के लिए कोशिश है। मुल्की तरक्की में इस अदारे की ज़रीन रवायात और आला खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं आज यहाँ खड़ा अपनी कौम के रोशन, ताबदार और महफूज मुस्तक़बिल को देख रहा हूँ, और मेरे इस गैर मुतज़लज़ल यकीन की बुनियाद आप तालीम याफ्ता, बातमाद और पुरअज़्म ख़वातीन हैं। मुझे यकीन है कि आप आज हमारे और आने वाले कल को रोशन बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। और मैं एज़ ए चांसलर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, उन यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ यहाँ लड़कों की तादाद 80% है, 90% है,
लेकिन एक बात मैं आपसे अपनी बेटियों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं किसी कन्वोकेशन पे जाता हूँ, ख़ासकर यूईटी के गया हूँ, दूसरा का, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि एक यूनिवर्सिटी मुझे ऐसी मिल जाए जिसमें हमारे बेटे जो हैं बेटियों के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। जहाँ मैं जाता हूँ, इवन जिन यूनिवर्सिटियों में लड़कों की तादाद 80% है, लड़कियों की तादाद 20% है, वहाँ भी जब मैं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल देने खड़ा होता हूँ तो कोई 8-4 बच्चियों के बाद कोई एक लड़का बड़ी मुश्किल से मुझे उस लाइन में खड़ा जो है नज़र आता है। तो इसलिए मुझे तो हमेशा मैं लड़कों को ये कहता हूँ कि बेटा, पूरी दुनिया में ख्वातीन को आगे लाने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है कि औरतों को मर्दों के बराबर लाना है, लेकिन 10 साल बाद मैनू ये लगता है कि पाकिस्तान दे विच सानू मर्दां लई कोटे रखने पैण। जिस तरीके ना तालीम दे विच हमारी बेटियां जो हैं माशाल्लाह आगे जा रही हैं। तो आखिरी बात मैं पर्सनल आपसे एक बात कह के इजाज़त चाहूँगा। एक बात मैंने ज़िंदगी में लर्न की है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। अगर आप में डेडिकेशन है, अगर आप में कमिटमेंट है, अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपको ज़रूर कामयाबी देता है। और मैं आपसे दर्जनों मेरी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हैं जिसमें मैं भी नहीं समझता था कि इसमें शायद मुझे कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन जब मेहनत की, अल्लाह पे तवक्कुल रखी तो अल्लाह ने कामयाबी दी। जब मैंने 1996 में ये फ़ैसला किया कि मैं बरतानिया की पार्लियामेंट के लिए उम्मीदवार जो है लेबर पार्टी का बनना चाहता हूँ, तो उस वक़्त पूरा एक ज़लज़लानी जैसे आ गया, तूफ़ान आ गया, कोई मुसलमान पार्लियामेंट में जाएगा, फिर पाकिस्तानी जाएगा। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि डिस्क्रिमिनेशन दुनिया सारी में है, बल्कि मैं जब यूरोप जाता हूं मैं उनको कहता हूं कि जितना इंटरफेथ हारमनी पे हमारे मुल्क में काम हो रहा है इतना यूरोप में नहीं हो रहा। हमारी माइनॉरिटी जो हैं अल्लाह के फजल व करम से महफूज हैं, इक्का दुक्का वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ब्रिटेन इज़ नॉट रेडी फॉर ए मुस्लिम MP, स्कॉटिश पीपल विल नॉट वोट फॉर ए ब्लैक पर्सन, ओनली 10% लोग हैं माइनॉरिटीज़ कम्यूनिटीज़ के, तो 90% वाइट लोग हैं, वाइट लोग ब्लैक पर्सन को वोट नहीं देंगे, मुसलमान को वोट नहीं देंगे, पाकिस्तानी को वोट नहीं देंगे। तो मैंने कहा भाई टेस्ट करेंगे तो आगे जाएंगे। तो मैंने अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने मुझे अपनी मेहनत और कोशिश की वजह से बरतानिया की तारीख़ में पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का शर्त दिया। और दूसरा एक मेरा और इम्तिहान था, जब 2013 में मैंने गवर्नर बना था तो उस वक़्त GSP+ एक ट्रेड कंसेशन है जो दुनिया के कुछ मुल्कों को यूरोप देता है, तो वो डिबेट हो रही थी। वो भी वहाँ भी उस वक़्त कोई मुमकिन नहीं थी। 33 कमेटी एग्जेक्टिव के उनके मीटिंग थे ट्रेड कमेटी के, उनमें सिर्फ 3 लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, 12 ने हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन मूव रखा था। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैंने तमाम 33 MEPs को 1-on-1 मिला। मैंने कहा भाई पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है, ये 4 मिलियन रेफ्यूजीज़ हमारे मुल्क में बैठे हैं, इतनी हमारे मसाइल पैदा हुए हैं अफ़गानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अगर हम नहीं डिज़र्व करते तो कौन करता है। तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को वो भी GSP+ मिला, जिससे पाकिस्तान को $20 बिलियन से ज़्यादा का फ़ायदा जो है वो हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक बात ज़िंदगी में याद रखें कि जिस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है, आपने उस मुल्क को पे बैक कैसे करना। मुझे पिछले वीक अमेरिका से एक डॉक्टर्स ने फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ख्वाहिश है, मेरा एम है कि मैं पंजाब के नहीं पूरे पाकिस्तान के हर स्कूल में मैं फिल्ट्रेशन प्लांट बच्चों को साफ़ पानी देना चाहता। कहता सोच मेरे लिए इसमें आई कि मैंने वर्कआउट किया कि मुझे उन्होंने डॉक्टर जब बनाया था तो मुझ पे इतने डॉलर पाकिस्तान ने सर्व किए थे और मैं अब उनको रिटर्न क्या कर रहा हूँ। तो अब मेरी ख्वाहिश ये है, तो उन्होंने कहा कि जी जितने स्कूल आप आइडेंटिफाई करें, हमने एक ज़िला अभी किया है जिसको वो सारी फंडिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये जज्बा आप लोग ला के रखेंगे कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, हम अपने मुल्क के गरीब लोगों के लिए क्या करना है, हमारे जो चैलेंजेस हैं हमने किस तरीके से यहाँ से निकलना है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान बहुत पोटेंशियल है और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ज़रूर बनेगा जिसका ख्वाब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल ने देखा था। आखिर में मैं फिर डॉक्टर बुशरा साहब का और प्रेसिडेंट साहब
इनकी बहुत ही मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब और हमारी बहन, इनकी मिसेस, जितना काम फलाही काम ये कम कर रहे हैं, हमें आप पे प्रेसिडेंट साहब, आपके और अपनी बहन पे फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। The recipients of academic and special gold medals of MS and MPhil are requested to please assemble in front of the dais. The Honorable Chief Guest, Chancellor and Vice Chancellor is requested to please give away the academic and special gold medals of MS and MPhil. Resham Wakar has secured first position in MS Biotechnology for the session 2019. Narmeen Ijaz, first position in MS Biotechnology for the session 2020. Sana Nasir, first position in MS Botany for the session 2020. Ikra Hamid, first position in MS Chemistry for the session 2019. She is also awarded Hafiza Butt Gold Medal. Hadika Aslam, first position in MS Chemistry for the session 2020. She is also awarded Hafiza Butt Gold Medal. Kashmala Tahir, first position in MS City and Regional Planning for the session 2019. Momina Abdul Khalik, first position in MS Computer Science for the session 2019. Unaiza Rahman, first position in MS Computer Science for the session 2020. Sidra Azam, first position in MS Economics for the session 2020. Ikra Manzoor, first position in MS Electrical Engineering for the session 2019. Saira Arshad, first position in MS Electrical Engineering for the session 2020. Nayab Nisar, first position in MS Environmental Sciences for the session 2019. She is also awarded Begum Iqbal Sikandar Gill Gold Medal. Anam Shehzadi, first position in MS Environmental Science for the session 2020. Zebun Nisa, first position in MS Fine Arts for the session 2019. Rohina Hassan, first position in MS Gender and Development Studies for the session 2019. Ayman Batul, first position in MS Gender and Development Studies for the session 2020. Sana Wazanfar,
first position in MS Health Psychology for the session 2019. She is also awarded Hashmat Ara Gold Medal. Hira Evan, first position in MS Health Psychology for the session 2020. She is also awarded Hashmat Ara Gold Medal. Mahnoor Khan, first position in MS History for the session 2020. Mahira Shah, first position in MS Management Science for the session 2019. Hifza Arshad, first position in MS Mass Communication for the session 2019. Mehwish Islam, first position in MS Mass Communication for the session 2020. Saman Raza, first position in MS Mathematics for the session 2020. Hira Aman, first position in MS Physics for the session 2019. Aruj Bukhari, first position in MS Physics for the session 2020. Hina Latif, first position in MS Political Science for the session 2020. Mehak Taufiq, first position in MS Statistics for the session 2019. Nazish Liaquat, first position in MS Zoology for the session 2019. She is also awarded Chaudhary Sikandar Ali Gill Gold Medal. Aruj Fatima, first position in MS Zoology for the session 2020. Sana Arif, first position in MPhil Pharmacy Practice for the session 2019. Iram Ijaz, first position in MPhil Pharmacy Practice for the session 2020. Hafiza Aisha Hamid, first position in MPhil Pharmacology for the session 2019. Amara Arif, first position in MPhil Pharmacology for the session 2020. Mehreen Siddiq, first position in MPhil Pharmacology for the session 2018. Ladies and gentlemen, please join us to give a round of applause to the recipient of academic and special gold medals of MS and MPhil. I request the Honorable Chief Guest, respected President, Islamic Republic of Pakistan, His Highness Dr. Arif Alvi, to address the congregation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल गवर्नर साहब, मेरे दोस्त चौधरी मोहम्मद सरवर, चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा, certified by the highest authority in the province as one of the best vice chancellors here, Asatiza Ikram, Aziz Talibat, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be at this convocation
of a historic place which started with Lahore College for Women in 1922 with 60 students and has matured into a university with thousands of students and providing good education in Pakistan. मैं समझता हूँ कि आप सबको बड़ी मेहनत से आप गुज़रे और आपके असातिज़ा ने आप पर मेहनत की और आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है कि जिस दिन आपकी फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई। बाज़ लोग आप में से जारी रखेंगे फॉर्मल एजुकेशन, मगर अक्सरियत के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन का ज़माना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही इंसान बदलता रहता है जो दुनिया से भी सीखता है, अपने जो दुनिया ने सीखा हुआ है उससे भी सीखता है और अपने रोज़ाना के मामलात से सीखता है और हालात से सीखता है। तो ये एक तो आपके माँ बाप की मेहनत है और हमारे जैसे माशरों के अंदर दुनिया की तरफ जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अक़दार दुनिया के अंदर कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलबीपन अगर पहले इंसानों में था तो अब कौमों के अंदर भी वही कैफियत बढ़ती चली जा रही है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो उसूलों पर कायम हुआ, जमहूरियत पर कायम हुआ, उसकी आबादी के लोगों को ये मुताज्जिब रहते हैं हम सब कि दुनिया को आया है बहुत सारी चीज़ें उसूल की, हक़ और इंसाफ की, और दुनिया उसके ऊपर अमल नहीं करती। तो हकीकत ये है कि दुनिया एक मुख्तलिफ रुख पर चली। तो लिहाजा मुझे अपने पाकिस्तान पर, अपने कल्चर पर और अपने अवाम पर इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे घरों की तरबियत और हमारे माशरे की तरबियत वो मुकाम रखती है जिसके अंदर ज़िंदगी में लोग सुकून पाते हैं। और आप में से जो लोग और जिनके माँ बाप और जिनके रिश्तेदार बाहर गए, उनकी जो बेचैनी पाकिस्तान में वापस आने की है, मेरा भाई यहाँ बैठे हैं, उनकी जो बेचैनी पाकिस्तान वापस आने की है वो सिर्फ़ एक मिट्टी से मोहब्बत कहा जाता है, मगर उस मिट्टी से मुराद वो होती है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की इज़्ज़तें, वहाँ का ख़ानदान और वहाँ की कदरें जो हैं वो घसीट कर लाती हैं। लोग सोचते ये हैं कि जो कुछ भी हो बाहर रहते हैं, मगर अपनी तरबियत उस माना करके करते हैं कि पाकिस्तान जैसी तरबियत दे सकें। तो लिहाजा आप जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो ये चीज़ जहन में रखिए कि सबसे अहम चीज़ ज़िंदगी में आपकी अखलाक़ी अक़दार रहेंगी। इल्म एक ज़रिया बनेगा मईशत को बेहतर करने का, अपने माश को, और 4 चीज़ें हैं जिस पर मैं समझता हूँ कि अहमियत रखे रहेंगे। एक तो ये है कि आप खुद रोज़ी भी कमाएं हैं और मेहनत भी करें, और दूसरे ये कि आपका ख़ानदान, अपने घर वालों को साथ लेकर आदमी चलता है, और तीसरे ये कि अपना माशरा, अपनी सोसाइटी, अपने क़ुर्ब जवार के लोग, और चौथे आपका मुल्क। ये उसी तरह से अहमियत है सीढ़ी ब सीढ़ी। पहले आदमी अपनी रोज़ी की फ़िक्र करता है, मगर इसका एहतमाम करता है कि बेईमानी वाली रोज़ी से दूर रहे, एक्सप्लॉयटेटिव रोज़ी से भी दूर रहे। और आजकल तो दुनिया कंपनीज़ के ऊपर भी एक पाबंदी लगाती है कि कंपनीज़ भी अपने स्टॉक होल्डर की जवाबदेह नहीं होंगी, बल्कि कंपनीज़ भी अपने माशरे की, अपनी एनवायरनमेंट की, अपने वर्कर्स की और अब मुस्तक़बिल की दुनिया के हवाले से ज़िम्मेदारी रखेंगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो तबका है ख़वातीन का जो ग्रेजुएट कर रहा है वो भी, और सबसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि यही प्रायोरिटीज़ आपके जहन में रहे। और जब ख़वातीन की यूनिवर्सिटी में मैं आऊँ तो बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर भी तवज्जो दूँ, इस माना करके कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि औरतों की तालीम बेइंतहा ज़रूरी है, औरतें शाना बशाना चलें। जितने लीडरान हैं सब ने कहा, बल्कि माशरे की सिक्योरिटी के हवाले से तो हज़रत उमर से जब किसी ने पूछा कि सिक्योरिटी क्या होगी तो उन्होंने कहा कि एक औरत की मिसाल दी। एक औरत ज़ेवर से लदी हुई यमन से अदन तक जाए, अजम तक जाए, और वो अपने आप को सिक्योर महसूस करे। अच्छा, औरत की क्यों मिसाल दी? क्योंकि इस्लाम ही वो मज़हब था जो औरत को डिग्निटी देने के लिए आया।
और आपको ताज्जुब नहीं होगा कि मैं आपको ये बताऊं कि 20वीं सदी यानी 1904 तक बरतानिया जो उस वक्त दुनिया का लीडर था हर मामले में, वहाँ पर औरत का हाल ये था कि अ वुमन वॉज कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड और ऑफ हर फादर। अगर उसने कोई कमाई भी की तो वो इनकम भी उसके बाप की या उसके खाविंद की प्रॉपर्टी थी। उसकी कोई आइडेंटिटी 1904 तक के बरतानिया के कवानीन में नहीं थी। इनहेरिटेंस तो बहुत दूर की बात है, मगर मेरा और आपका मज़हब जिसकी बुनियाद पर 1400-1500 साल से हम जी रहे हैं, उसमें औरत का एक इज़्ज़त का और एम्पावरमेंट का मुकाम है। ये नए अल्फाज हैं मगर इनका ओरिजिन तो इस्लाम में ही मिलता है, दुनिया की तारीख में नहीं मिलता। औरत मलका बन जाती थी मगर इनहेरिटेंस नहीं थी औरत के पास। तो ये लिप सर्विस नहीं है। बाज़ जगहों पर दुनिया सारी मगरबी दुनिया के अंदर मैं एक लिप सर्विस देखता हूँ कि जब अफ़गानिस्तान के ऊपर बमबारी हो रही थी या मशरिक़ वुस्ता में हो रही थी, जब औरत की फ़िक्र कम थी और कम होती है, जैसे ही अफ़गानिस्तान में दूसरा दौर आया तो वहाँ पर ये फ़िक्र होने लगी कि औरतों के राइट्स और बच्चों के राइट्स। तबाही जंगों के अंदर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट औरत और बच्चा होते हैं और दुनिया तबाह करती रहती है और आंखें नीचे रखती है। सिर्फ ये कि हमारी कौमों के अंदर जो सुपर पावर्स हैं और जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो अपने ख़ित्ते पर और अपने इलाके में लड़ाई झगड़ा नहीं करती, सब बाहर, सारे तजुर्बे बाहर सूरत में आपसे ज़िक्र ये कर रहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही बात की और साबित की। और साबित कैसे की कि पहला वाक़या तो मैं आपको 2 ही वाक़े उनके सुना दूँ। पहला वाक़या तो ये था कि उनकी शादी हुई पेटी डिनशॉ से, जो बाद में मरियम जिन्ना कहलाईं। तो कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के किसी फंक्शन में लखनऊ गए और उनके साथ उनकी बीवी थी और बीवी पहले उतर गई गाड़ी से और वो जब अंदर शामियाने के अंदर जहाँ फंक्शन था वहाँ जाने लगी तो लोगों ने उनको एंटर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा इनविटेशन कार्ड भी लाए और औरत तो अंदर कोई है ही नहीं। तो कायद-ए-आज़म गाड़ी में ही बैठे हुए थे, जब उन्होंने आकर ये किस्सा सुनाया तो उन्होंने अपनी जेब से अपना इनविटेशन कार्ड देकर उनको भेजा कि अब जाओ एंड नोबडी शुड स्टॉप यू। तो कायद-ए-आज़म ने ये मिसाल उस ज़माने में कि जब पाकिस्तान से पहले का वक्त था। जब पाकिस्तान बन गया तो कायद-ए-आज़म भी फातिमा जिन्ना साहिबा को अपने साथ लेकर चले। तो लिहाजा दिस इज़ नॉट लिप सर्विस। योर कंट्री वांट्स यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एन एम्पावर्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी। देयरफॉर पिछले दिनों औरतों के हवाले से बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए, बहुत सारे कवानीन भी बने, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाला कानून जो है वो है कि जो 1400 साल पहले इस्लाम का कानून था इनहेरिटेंस का। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे घरानों के अंदर ये सिंपल कानून जो कुरान के अंदर मौजूद है ये प्रैक्टिस नहीं होता। तो लिहाजा इस कानून के ज़रिए ये कोशिश की गई कि औरत को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया जाए। माशरे पर बड़ी जिम्मेदारी है। देखें आप माशाल्लाह, जैसे गवर्नर मेरे भाई सरवर साहब ने ये कहा कि आप तालीम में तेज़ हैं, मगर एक साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशरी का फ़ैसला 80 की दहाई में और 90 की दहाई में हुआ कि दाखिले जो हैं वो मेरिट पर मिलेंगे, जेंडर पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि जेंडर पर इन द 80s एंड 80s में ख़ास तौर पर एक कैफियत थी कि स्टूडेंट्स की तादाद एक्सेप्ट फॉर पर्टिकुलर कॉलेजेस लाइक लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन, तादाद प्रोफेशनल कॉलेजेस में ये थी कि जेंडर में अगर 1/3 औरतों की सीट्स होती थी और 2/3 लड़कों की सीट्स होती थी। तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं, मेरिट पर होगा, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, माई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, उसका नतीजा ये हुआ कि 80%, 90% प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लड़कियाँ हैं। और क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर इस बात का जिक्र हुआ कि आप पढ़ाई में तेज़ हैं। अच्छा, मगर जब मैं हायर लेवल्स पर देखता हूँ कि ग्रेजुएट किया, डॉक्टर्स बनी, इंजीनियर्स बनी, और फिर उसके बाद हायर लेवल्स पर औरतें कम हैं। अच्छा, ये एनॉमली है और आपसे बेहतर कौन सा मौका होगा, इस महफिल से बेहतर कौन सा मौका होगा कि इस बात को आपसे जिक्र किया जाए। इस एनॉमली की 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ट्रेडिशनली ये समझा जाता है, चाहे वर्बली इसका जिक्र ना हो,
कि अच्छा प्रोफेशन डॉक्टर बन जाए तो शादी अच्छी हो जाएगी, ये सोच तो मौजूद है। अच्छा, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, जाहिर है आदमी सोच सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तालीम का मकसद ही यही था। क्योंकि तालीम तो इसलिए थोड़ी दी गई, सिर्फ इसलिए थोड़ी दी गई कि अच्छा ख़ानदान, और मेडिसिन उससे हटकर या इंजीनियरिंग उससे हटकर, तो तालीम तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन में भी दी गई। और आपको जिन शोबों के अंदर तालीम दी गई तो उससे एक इनडायरेक्ट फ़ायदा, बेहतरीन फ़ायदा कि अच्छा ख़ानदान, अच्छे ख़ानदान की तरबियत हो, मगर उसका एक डायरेक्ट फ़ायदा उस कौम को मिलना चाहिए जिसने आप पर इन्वेस्ट किया। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने फ़ीस दी, मगर इस कॉलेज पर तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का बहुत है, माशरे का बहुत है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो आपको मिला ना, तो लिहाजा वो इन्वेस्टमेंट, ये उम्मीद है कि आप माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो लिहाजा माशरे की क्या जिम्मेदारी, एक तो आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ, तो जहन में रखिए इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ इस बात की हैं कि औरत घर से बाहर निकले बगैर भी काम कर सकती है। औरत यकीनन फैमिली ओरिएंटेड रहेगी, असल में कुछ अपने शादी के शुरू के चंद सालों के अंदर तो ज़रूर रहेगी। अच्छा, और माशरे की जिम्मेदारी ये है कि उनका एग्ज़िट टूवर्ड्स द फैमिली एंड री वेलकम इनटू द इंस्टीट्यूशन का के मोडालिटी को हम बेहतर करें। दुनिया इसके अंदर कोशिश कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया इसके अंदर कोशिश कर रही है। और आपके लिए भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नेवर गो आउट ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। अपॉर्चुनिटीज़ आर बीइंग क्रिएटेड, वी नीड यू। हाउ कैन अ कंट्री से कि एजुकेटेड लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है और आप घर बैठ जाएं? हमें आपकी ज़रूरत है। मिलियंस ऑफ यू आर नीडेड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यू आर नीडेड। और अगर इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन दुनिया के अंदर आ रहा है आईटी के हवाले से और हर चीज़ के एतबार से, तो हमें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मेरे डेस्परेशन है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ पहले तो मैं उनसे कहता हूँ कि नंबर बढ़ाओ। क्यों नंबर बढ़ाओ? आई वाज जस्ट नरेटिंग टू द वाइस चांसलर कि इन पाकिस्तान जो इंटरमीडिएट के बाद हायर एजुकेशन में प्रोपोर्शन है वो 10% का है। रीजन के अंदर, मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, रीजन के अंदर 16% और 24% है। लाखों की ज़रूरत है। फर्दर पाकिस्तान जब ही तो तरक्की करेगा, सिर्फ सोच पर नहीं करेगा, अपनी इंटेलेक्ट और अपनी तालीम की बुनियाद पर करेगा। तो वी नीड टू जंप, वी नीड टू रन फास्ट और हम नंबर्स बढ़ाएं। हमेशा आज से 20 साल पहले ये होता था कि जी नंबर्स बढ़ाने के अंदर क्वालिटी कम होगी। आजकल के ज़माने में कहीं क्वालिटी कम होने का इम्कान नहीं है। सारा काम आईटी सेक्टर के अंदर मिसाल के तौर पर एम्प्लॉई होता है, अपने घर पर टिम्बकटू में काम कर रहा हो, जो एम्प्लॉयर है उसको पता चलता है कि कितना काम इसने किया। तो क्वालिटी कैन बी मेंटेन्ड। एक यूनिवर्सिटी है, 2 यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को ब्रोच किया पाकिस्तान ने, एंड पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन में वो कहीं पीछे रह गए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन उस एतबार से जितना होता था कि किताबें भेजते थे और टीवी पर लेक्चर देते थे, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी विच एग्जिस्ट इन इस्लाम, फेडरल यूनिवर्सिटी है, एग्जिस्ट इन लाहौर। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि जब मैं आया, मुझे जिम्मेदारी दी गई सदारत की, तो एक यूनिवर्सिटी का जिक्र है जो रेंटेड प्रेमिसेस से लाहौर में काम करती है, रेंटेड प्रेमिसेस से करती है, और वो 17,000 डिग्रीज देती थी, एडमिशन्स देती थी। 27,000 when this government came into power। सिर्फ मेरे कहने से और मेरे पुश से वो 27,000 से 2 साल के अंदर 48,000 तक पहुंच गई। नो एडिशनल एक्सपेंस, नो एडिशनल एक्सपेंस। तो ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर एजुकेशन का ज़माना है, जो बहुत एक्सपेंसिव तरीक़ेकार है, अब दुनिया के अंदर ये कम्युनिकेशन बहुत आम हो गया, और कोविड ने इस बात को हमें मज़ीद सिखा दिया कि दिस इज़ पॉसिबल। तो इन द सेम प्रेमिसेस यू कैन हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप फिजिकली बात सुन रहे हैं ना, मगर कैपेसिटी इस बात की है कि मेरी तकरीर और इनकी तकरीर और वाइस चांसलर साहिबा की तकरीर 50,000 लोग सुन रहे होते। तालीम है क्या? तालीम तो किताबों के अंदर इंसान का माजी का इल्म जो पिछले 5,000 साल का है, वो किताबों में बंद है। अच्छा, और किताबें अगर आपको मिल जाएं घर पर, ज़रूरी नहीं कि फॉर्मेट लिखा हुआ हो और प्रिंटेड हो। इल्म का फॉर्मेट तो इल्म का फॉर्मेट है ना,
और कम्युनिकेशन ऐसा आर्ट है जो अब बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको सीधी सादी बात बताऊं, कम्युनिकेशन की कैफियत, आप सबकी टोपी भी ढीली पड़ती है कम्युनिकेशन की कैफियत ये थी कि इंसान ने चौक से दीवार पर लिखा, तो एक इंस्क्राइबिंग टूल था और एक वो सफ़ा था जिसके ऊपर इंस्क्राइब किया गया। इसी स्किल को बेहतर करते करते कलम, टाइपराइटर और प्रिंटेड वर्ड आ गया। अच्छा, अब प्रिंटेड वर्ड को पढ़ना मेरे और आपके लिए तेज़ है, बाकी पूरी तकरीर को मेरी सुनना स्लो है। तो नतीजा क्या हुआ, देखो दुनिया किस अंदाज से चलती है। व्हाट्सएप ने आपकी गुफ्तगू को तेज़ करना शुरू कर दिया, सिंपल 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स, है ना, तेज़ करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि यू कैन हियर फास्टर देन अ पर्सन कैन स्पीक। लिहाजा ये सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज के टूल्स के अंदर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि द नॉलेज इज देयर नॉट इन द प्रिंटेड वर्ड टुडे बट इन अ फॉर्म ऑफ द प्रिंटेड वर्ड। जो पैकेजिंग किताब की हटकर वो क्लाउड में आ गया सारा, तो लिहाजा आपकी रीच में आ गया। लिहाजा आपकी रीच में आया तो 50,000 लोगों की रीच में आ गया। तो लिहाजा कम्युनिकेशन इज द आर्ट विच विल चेंज द वर्ल्ड। एंड व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चेंज की लाने की, क्योंकि हमारा विजन बहुत ऊंचा है। हमारा विजन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तस्वीरें लगी हुई हैं, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान। हमारा विजन उस लेवल पर है जिस लेवल पर हम अखलाकियात को दुनिया के अंदर, जो गायब होती हुई एक सलाहियत है या इंसान के जहन के अंदर गायब होती हुई कैफियत है, वेस्टेड इंटरेस्ट एवरीवेयर। कश्मीर में हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जितना जुल्म हो, फ़लस्तीन में जितना जुल्म हो, दुनिया की कान पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलबीपन मौजूद है। सिर्फ एक चैलेंज है, रेफ्यूजीज़ को डूबने देते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने होस्ट किया 40 लाख रेफ्यूजीज़ को 40 साल। तो लिहाजा अक़दार के अंदर बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। आपने तो दुनिया के अंदर कमाल किया है। ये 200 रेफ्यूजीज़ को डूबने देते हैं बहरिया रूम तक में। और पोप ने बड़ा साफ कहा, उसने कहा कि दीज आर द ग्रेवयार्ड, मेडिटेरेनियन हैज़ बिकम अ ग्रेवयार्ड ऑफ रेफ्यूजीज़। तो ये वो ममालिक हैं जो हमें सिखाते रहे 100 साल से। हम जो 100 साल से सीख रहे थे और सिखा रहे थे वो हम भूल चुके हैं। तो लिहाजा एक तो मैं आपसे एक बात ये कह रहा था कि आप अब यू गो आउट एंड सर्व योर कंट्री एंड योर सेल्फ, बट एट द सेम टाइम देयर आर 2 थिंग्स विच आई वांट यू टू गिव इम्पोर्टेंस टू। एक, आपकी ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए, बी हम्बल। बहुत अहम बात आपसे कर रहा हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को आप पिक करें, द ह्यूमिलिटी। वो आपको इल्म हासिल हुआ, ये अमानत है, आपकी कौम की आपके पास अमानत है। इस अमानत को अपने घर में और हर एक के साथ इस अच्छी तरह से इस्तेमाल की। ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेट वेल। और वो हज़रत मूसा की जो दुआ है वो पढ़ना कुरान में जाकर, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन एक आर्ट है, उसको अपनाएं। पुअर कम्युनिकेशन की वजह से घरों में लड़ाई होती है, भाई बहनों में लड़ाई होती है, बरादरियों में लड़ाई होती है, कौमों में लड़ाई होती है, और उसकी तबाहकारी हमने दुनिया के अंदर देख ली। तो लिहाजा मैं इस गुजारिश के साथ आपके साथ कुछ बातें की और आपकी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ बातें की कि वी नीड इंक्रीज़ इन नंबर्स एंड फास्ट। और ये पाकिस्तान का एक डेस्परेशन है। नर्सिंग के अंदर मिसाल के तौर पर अगर आप हर फील्ड को देखें तो नर्सिंग के अंदर हमें जस्ट एन एग्जांपल, हमारे यहाँ 1-2 लाख नर्सेज हैं, हमें 9 लाख की ज़रूरत है। अच्छा, ये ब्रिक एंड मॉर्टर इंस्टीट्यूशन बनाते बनाते जब हम 20 साल में पहुँचेंगे 9 लाख तक, तब ज़रूरत और बढ़ चुकी होगी। तो लिहाजा ब्रिक एंड मॉर्टर में नॉट वर्क। दूसरी बात आपको मिसाल दूँ कि IT सेक्टर के अंदर हम 25,000 ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अ नेबरिंग कंट्री इज़ प्रोड्यूसिंग 800,000 ग्रेजुएट्स। आर वी गोइंग टू कम्पीट विद दीज नंबर्स? तो देयरफॉर नंबर शुड इंक्रीज। ये डायरेक्टेड है मेरा एजुकेशन अथॉरिटीज़ की तरफ, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ। और बाकी चीज़ें आपके किरदार के एतबार से, आपके अखलाक के एतबार से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी मेहनत आपने की और इसका टोटल कैफियत अपने रवैये से और अपने माशरे की फ़िक्र करते हुए अपनी ज़िंदगी अगर गुजारेंगे, दूसरों के साथ दूसरों को भी उठाएंगे, दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान वांट्स फ्रॉम यू एंड आई एम श्योर यू कैन डिलीवर, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
Honorable Chancellor, Sir, I request you to declare the convocation closed. I declare the convocation closed. We thank all the dignitaries and respected guests for joining us today on this auspicious occasion. Guests, students, ladies and gentlemen, please rise and remain at your seats until the convocation procession will leave the ICRA auditorium. Don't forget to subscribe, share, like with good comments. Allah Hafiz.